اپنی کشمیر سے لے کے کراچی تک نمائندگی کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام یہاں جو میرے بھائی جو دور محمد گوٹ کے جو لوگ ہیں، آپ تمام لوگ بزرگوں کے ساتھ، اور ہماری جو یہاں کیبنٹ میں ہمارے اس آپ کے دور محمد گوٹ کے جو رہنما اور کند کوٹ کشمور کے رہنما سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف جناب شاہد علی سورانی صاحب، شاہد علی ورین صاحب، نور حیات کھٹک صاحب، جاوید مسعود صاحب اور منیر کھوسو اور دیگر جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم. ابھی ہم یہاں آئے ہیں، ہم تو اپنا خیر ایک احتجاج کر رہے ہیں کراچی پریس کلب کے اوپر جو پچھلے 75 دنوں سے جاری ہے، اور ہم نے وہاں دھرنا دیا ہوا ہے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے، خصوصاً کارکنوں کے حقوق کی جنگ کے لیے. کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی حکومت مل جاتی ہے یا پاورز مل جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنا وہ جو حصہ جو لوگوں میں گزارا ہے، ان سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں نا، وہ سارے وعدوں سے ایسا بندہ پھرتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ سیاست سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر ہم اس وقت آ کے بیٹھے، آپ کے یہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جی آپ کے یہاں پر کوئی کسی قسم کی نمائندگی ہی نہیں ہے جو آپ سے آ کے پوچھے کہ علاقوں کے مسئلے کیا ہیں، یہ روڈ کا کیا مسئلہ ہے، گیس ہے نہیں ہے، بجلی ہے نہیں ہے، پھر آپ کا جو پانی کا کیا نظام ہے، سیوریج کا یعنی کہ گٹروں وغیرہ کا کیا. تو وہ میں آپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آتے ہوئے سارا خود دیکھتے ہوئے ہیں. تو مجھے نہایت ہی افسوس ہے کہ کوئی اور پارٹی تو چلے چھوڑیں جن کے ہم مخالف ہیں، جن کے ہم خلاف ہیں، ان سے تو ہم اگر اتنا ہمیں ہوتا ان پہ اعتماد کہ وہ کوئی نمائندگی کریں گے تو ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے. انہوں نے تو 70 سال سے 72 سال سے پاکستان کو جو ہے وہ برے حالات میں لے کے مطلب ڈالا ہے نا. اب ہم نمائندگی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نمائندگی یا اس کا کوئی منتخب نمائندہ یا پیرا شوٹر نمائندہ ہی کہنا چلے، کوئی بندہ بھی آپ کے پاس ابھی تک پہنچا نہیں ہے. تو جیسے آپ لوگوں نے کہا بارشوں میں، آفتوں میں، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس شاید وہ کرونا کے اندر بھی کہیں نہیں آئے ہوں گے. 2-3 مہینے یا کرونا میں آئے تھے کوئی؟ نہیں بھائی، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. بس تو یہ اللہ ہی حافظ ہے. سال میں آئے تھے، وہ لکھ کے گئے، وہ بیماری کچھ بھی نہیں آئے، ابھی تک بھی نہیں آئے، وہ لکھ کے دے گئے. اللہ ہی رحم کرے گا. ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کے دکھوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ ہیں. میں خود یا میرے ساتھ جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ کوئی پیرا شوٹر نہیں ہے. ہم نے 23 سال 22 سال جو ہے وہ سڑکوں پہ جدوجہد کی ہے. جیسے میرے بارے میں بتایا آپ کو جاوید بھائی نے کچھ باتیں، میں ابھی سے نہیں 22-23 سال سے تحریک انصاف سے جڑا ہوں. تو میرا تو خود بخود جو ہے نا ایک حصہ بن کے آ جانا چاہیے تھا پارٹی کی طرف سے. جب آج وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان ہو گئی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم ایک محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں سے، اور انشاءاللہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم جس محاذ پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں سے ہمیں جو کامیابی ہوئی تو انشاءاللہ یہ دور محمد گوٹ والے ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ہی پائیں گے یہاں پر، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. کوئی بھی مسئلہ ہوا آگے نمائندگی اور کراچی کے لیول کے اوپر جو نمائندگی اگر کہیں ملی تو انشاءاللہ آپ لوگ، آپ کا جوتا اور میرا سر ہوگا اگر میں آپ کے درمیان یا نہ موجود ہوں. آپ کے ہر مسئلے مسائل میں، آپ کی خوشیوں میں اور آپ کے دکھ کے اندر انشاءاللہ. عمران خان عمران خان. اچھا میرے پاس پاور کچھ نہیں ہے ابھی. اس وقت پاور ہو نا تو آپ مجھے بولو کہ آپ یہ کرا دو وہ کرا دو، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو قانونی لحاظ سے بھی ہو تو میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، اس لحاظ سے بھی آپ اس سے ویسے ہی رابطہ کر سکتے ہیں ابھی. مگر ایز اے منسٹر یا ایز اے کوئی لوکل نمائندہ میں ابھی نہیں ہوں، نہ میری ٹیم سے کوئی ہے، تو ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر رہے. مگر انشاءاللہ جو آپ کے مسئلے قانونی لحاظ سے ہوں گے اس میں میں پرسنلی حاضر ہوں اور آپ لوگوں سے پورا تعاون کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے جو یہاں بلائی گئی. ہم لوگ 75 روز سے جو پریس کلب کے اوپر بیٹھے ہیں وہ
जद्दोजहद है हमारी उन 3 चीज़ों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सिरे से नहीं है इस वक्त। और वो 3 चीज़ें क्या हैं जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अक्सर अपनी तकरीरों में, अपनी लिखत में, लिखाई के अंदर और लोगों से बात करते हैं, वर्बली अगर वो बात कर रहे हैं किसी से, उसमें 3 चीज़ें थी, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। यानी कि यूनिटी मीन्स इत्तेहाद, एक दूसरे के साथ ऐसे। हमारी तहरीक इंसाफ के अंदर हम इस यूनिटी को लेकर चलते हैं। ये वाहिद पार्टी है जो पूरा गुलदस्ता है पाकिस्तान का, जिसमें आपको सिंध में सिंधी भी नज़र आएंगे, पंजाब में पंजाबी भी नज़र आएंगे, केपी में पठान और दूसरी कौमें भी नज़र आएंगी, बलूचिस्तान। मतलब हमने इस पार्टी के अंदर इस तासुब वाला कोई सिलसिला ना कभी देखा है, ना कभी करने देंगे किसी को। तो हम इस यूनिटी के ऊपर जो है वो पहला स्टेप है हमारा इस धरने का। और उसके लिए जो है वो जब हम आपस में मुत्तहद होंगे तो ही हम इन पैराशूटर्स को जो इस वक्त अलीम आदिल की सूरत में, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सूरत में या खुर्रम शेर जमान की सूरत में हम पे नाफिज है। तो हम जब तक आपस में मुत्तहद नहीं होंगे ना, तो मुत्तहद का मतलब क्या था, कायदे हम क्या कहते थे, यूनिटी, आपस में इत्तेहाद रखो, कौमों में ना बटो और तासुब में ना बटो। ये सोचो कि कराची से कश्मीर, कश्मीर से इस्लामाबाद और पेशावर, ये पूरा मुल्क तुम्हारा है, तो तुम पूरे मुल्क के बाशिंदे हो, पूरे मुल्क पे जाकर राज करो। मगर कब, जब आपस में मुत्तहद हो गए। ऐसे कैसे, हाथ ऊपर करें सारे, ऐसे। तो जब हम आपस में मुत्तहद होंगे तो ये पहला पार्ट था यूनिटी जो कायदे आज़म कहते थे। दूसरा था फेथ। फेथ होता है यकीन, अल्लाह के ऊपर हमें यकीन है। जब हम उसके सामने इबादत करते हैं, झुकते हैं, तो हम यकीन पे झुकते हैं। हमें पता है कि अल्लाह है, एक है और वो हमें इसका अजर देगा, तो ये यकीन कहलाता है। अब हम जब तहरीक इंसाफ में आए 22-23 साल या जो भी जिस वक्त भी शामिल हुआ, हम लोगों ने ये सोचा था, ये हमारा यकीन था, यानी कि दूसरा अल्फाज फेथ, यकीन था हमारा कि इमरान खान वो वाहिद शख्सियत है पूरे पाकिस्तान में जो कायदे आज़म के बाद जो वाहिद लीडर है, दूसरा जो वाकई इस मुल्क की तरक्की चाहता है, इस मुल्क के लोगों को सुधारना चाहता है, इस मुल्क के टैलेंट को दूसरी दुनिया में लेके जाना चाहता है, और इस मुल्क के लिए एक मुहाफिज भी है। और उस मुहाफिज के पीछे हम सब सारे जाके खड़े हो गए, तो हम भी मुहाफिज हो गए ना, हम सारे भी उसके मुहाफिज हो गए ना अपने मुल्क के। तो हम इस यकीन पे आए थे। मगर अनफॉर्चुनेटली, यानी कि अफसोस की बात है कि आज इस पार्टी के अंदर जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान की हुकूमत बनी है, तो इसमें सारे वही लोग आ गए जिनके ख़िलाफ़ हम इतने अरसे से जिद्दोजहद कर रहे थे। अगर हमें इन्हीं लोगों के साथ चलना है, हमें इन्हीं लोगों के साथ जो है इनकी मतलब खुशामदियाँ करनी है, अगर हमने इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाना है, तो फिर हम नून लीग को भी वोट दे सकते हैं, फिर हम जरदारी को भी वोट दे सकते हैं और दूसरी पार्टियों को भी दे सकते हैं। तो ये फ़र्क जब इन्होंने ख़त्म किया, हम इसके ऊपर आए कि नहीं, यकीन हमारा ये था और हो ये रहा है, तो निकलो। ये हमारे 75 दिन के धरने का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट था डिसिप्लिन। कायदे आज़म कहते थे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माना कानून, हर चीज़ का कानून। घर के अंदर एक डिसिप्लिन होता है कि बाप जो है ना वो ऊपर होता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे खुदा ना खास्ता वो माजूर हो, या चाहे वो उसका इंतकाल ही क्यों ना हो गया हो, मगर चूँकि बाप, तो भाई बाप तो ऊपर ही आएगा ना, चाहे जितना बड़ा उसका बेटा हो जाए, मगर वो कभी नहीं कह सकता कि बाप के मैं ऊपर हूँ, वो कभी नहीं कह सकता। तो ये डिसिप्लिन है। ये मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ, ये डिसिप्लिन है। अब अगर आप इस कानून के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी चले जाएं, घूमे फिरें, मतलब इधर उधर निकलें, आपको ये कानून के तहत अगर चलेंगे ना, तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं हारेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हारेंगे। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अनफॉर्चुनेटली ये डिसिप्लिन का भी मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ना सीनियर की कोई कदर है, ना फाउंडर की कोई कदर है, ना नज़रियाती लोगों को जो है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है वो हमारे ऊपर जो आके मुसल्लत हुए, वो उन लोगों की वजह से मुसल्लत हुए जो पिछले 22-23 साल से तहरीक इंसाफ के अंदर किसी ना किसी रोल के अंदर मौजूद रहे और जिन्होंने हमारे नज़रिए का सौदा किया। क्या किया? सौदा किया। उन्होंने सौदा किया। वो सौदा आज आपके इलाके में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई नुमाइंदगी पहुँची नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई या तो सिंध असम्बली पहुँच जाओ, या कौमी असम्बली पहुँच जाओ, अपने सारे मुराद लेना शुरू कर दो, अपनी तनख्वाहें लेना शुरू कर दो, और इसके बाद इलाकों को पूछना नहीं है। मगर आपको मैं बताऊं, अब आप लोगों ने हमारा साथ तो देना है कि नहीं? देना है।
हम कराची प्रेस क्लब के ऊपर बाहर बैठे हुए धरना लगा के, जो भी साथी अभी इस वक्त जो बैठा है और आगे भी दूसरे लोगों को भी बताएं, जो भी साथी उधर से गुजरे भी ना, हम ज़बरदस्ती नहीं कह रहे किसी को, और आना जाना भी बड़ा आसान नहीं है, मुझे ये भी पता है, अंदाज़ा है यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर कोई साथी भी आप लोगों में से वहाँ से गुजर भी रहा हो ना, सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं और शाहिद भाई और सारी टीम हमारी वहाँ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि आपको पता है काम काज में लोग होते हैं, अपने अपने टाइम से आ रहे होते हैं सारे, तो हर आदमी वहाँ बैठा होता है। आप लोग आके वहाँ मुलाकात करें, इस जद्दोजहद को हमारे साथ आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। मगर किसके लिए उनके लिए जो पैराशूटर्स हैं, वो लोग जो पैराशूटर्स हैं उनके खिलाफ। पैराशूटर का मतलब ये कि आप बैठे हुए हैं, अभी ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं ना, अभी इनके ऊपर जो है ना एकदम से कोई ऊपर से आ जाए कि मुझे तो तकरीर मुझे करनी है, तो वो पैराशूटर होता है। क्या होता है? ऊपर से आया हुआ। मेहनत इन्होंने की सारी, पैराशूटर आया बोले नहीं तकरीर मुझे करने दो, तो ये पैराशूटर होता है। हमने इसके खिलाफ ये जद्दोजहद करनी है। हमने मनपसंद यानी कि अलीम आदिल शेख जो है वो लेबर विंग का अपने भाई को सदर बना देता है। क्यों? क्योंकि खुद पावर में भाई को लेबर विंग का सदर बना दिए। हमें मुखालफत करनी है उन अनासिर की जो दूसरे, हमारे पास एक और मिसाल है शाहिद साहब, लेबर, और एक हमारी जो है वेलफेयर विंग है जिसके सदर है अली जान साहब, वो है हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जिन्होंने हमारे नज़रिए का सौदा किया हमेशा, जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, उन्होंने अपने भाई को बना दिया उसका वेलफेयर विंग का। अच्छा, वेलफेयर विंग जो है वो एक तो गैर आईनी है, पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन 2019 के मुताबिक गैर आईनी है, वो विंग ही नहीं है। वो बनाई गई, ओहदे बांटे गए सिर्फ हमारे खौफ से कि हम लोग प्रेस क्लब के ऊपर उनके खिलाफ धरना दे के बैठे हैं और कारकुन हमारी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। तो जब ये दीवार है ना, ये दीवार के नीचे कोई बेस नहीं है, उसके नीचे मजबूती नहीं है। तो ये दीवार कैसी है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। बस सिर्फ यही काम रहेगी इंशाअल्लाह। आप लोगों ने हमारे साथ मिलना है, मिलकर उस दीवार को धक्का देना है, और आपके अपने इलाके की जो नुमाइंदगी है इंशाअल्लाह ताला कराची में मुझे अगर कुछ मिला, मुझे नहीं पता, अल्लाह को मालूम है ये मामला सारे, मगर अगर मेरे हाथ में कुछ आया, आपके इलाके की नुमाइंदगी आपके इलाके के नुमाइंदे ही करेंगे। कोई ऊपर से पैराशूटर नहीं आएगा, कोई मनपसंद नहीं आएगा, कोई दूसरी पार्टी से हलवा खाने के लिए नहीं आएगा, और दूसरे जितने मामला होंगे हम ऐसा आदमी लेंगे जो आपकी मर्जी का होगा और वो आपकी नुमाइंदगी करेगा, वो आपके मसाइल आपके घरों पे दरवाज़ों के ऊपर आके हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत एक बार शुक्रिया, और दावत खिताब में दूंगा हमारे फ़ख्र सिंध जनाब शाहिद अली खान रिंद के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।